Just tell your name here and then you can start. Good afternoon everyone. Myself Kavya Patel from first year BPE. I'm gonna recite a poem named Television by Roald Dahl. So here goes my poem. The most important thing we have learned so far as children are concerned is to never let them near your television set. Or better still, just don't install this idiotic thing at all. In almost every house we have been, we have watched them gaping at the screen. They loll and slump and lounge about and stare until their eyes pop out. They sit and stare and sit until they're hypnotized by it, until they're absolutely drunk with all that shocking, ghastly junk. Oh yes, we know, it keeps them still. They don't climb out the windowsill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and do the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved dog? It rots the senses in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters of the mind. It makes a child so dull and blind. He can no longer understand a fantasy, a fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think. He only sees. All right, you say. All right, you cry. But if we take the set away, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. We'll answer this by asking you what use the darling wants to do. How use they keep themselves contented before this monster was invented. Have you forgotten? Don't you know? We'll say very loud and slow. They used to read and read and read and read and then proceed to read some more. Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens and witches, and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants. Oh, what books they used to know. Those children living long ago. So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV sets away. And in its place, you can install a lovely bookshelf on the wall. Then fill the shelves with lots of books, ignoring all the dirty looks, the screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks. But fear not, because we promise you, in about a week or two of having nothing else to do, they now begin to feel the need of having something to be. And once they start, oh boy, you watch slowly grow in joy. That fills their hearts. They'll grow so keen. They'll wonder what they'd ever seen in that whole unclean, repulsive, nauseating television screen. And later, each and every kid will love you more for what you did. And later, each and every kid will love you more for what you did. Thank you. And I'll be speaking a poem I wrote on my own, and the topic is Another Lost Summer. Another lost summer. As the sunnier days become gloomier with clouds, I realize I've lost another summer. Another summer of my youth slipped away from me. Was this the summer people talked about? Constant thirst for staying alive, feeling burned out, walls of protection breaking down. Is this what summer is? What about the fireflies I was told of? What about dipping in the streams I dreamt of? Those fireflies had lost their light of hope, and those streams ran dry at the name of life. Losing hope was all that I did this summer. Instead of living the life I wanted, now raindrops keep falling and falling, like a castle built on sand. I see as the rain washes away the excitement in me. I'm as blue as the clear skies after a heavy rain. As the scenery becomes greener, I become more anxious and I realize I've lost another summer of my life. मैंने खुद पोएम लिखी है। कोशिश तो कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा मेहनत को हिम्मत दे, ताकत जुटा मेहनत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा सा वो भी कल चल निकलेगा। जो आज है कुछ थमा सा वो भी कल चल निकलेगा।
Good afternoon, everyone. My name is Nandini Agarwal from first year BPD. Here I am presenting a poem written by Katie Coots. She bought Katie Coots Agarwal. She bought things with her heartbeats, dealt in the currency of time, counted her pulse to track her spendings while she waited in long lines. She wasn't one for banking. Heartbeats aren't something you can save. You either spend them or you lose them until you are lying in your grave. She had given heartbeats to strangers while she listened to their woes, because a heart's worth more than money. As far as money goes, she splurged heartbeats on moments, on afternoons with age-old friends, who asked how she was happy without a dollar she could spend. But moment only buys you things, while heartbeats buys much more. They buy you loud side rippling laughter that leaves you rolling on the floor. Heartbeats buy you moments. They buy you tears and hugs and smiles. They buy you time to reminisce with friends you haven't seen in quite a while. Money can't buy heartbeats, and that's a fact you've always known. So make sure each day you are happy with the way you spend your Is this written by your own? एक्चुअली मैं आज सवाल में नाम लिखा मुझसे कुछ कहा एक मिनिट तक नाम वृंदाशा। आज मैंने शीशे में खुद को देखा और देखते ही मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुस्कुराते मैंने एक बात कही उस चेहरे से, यार बड़ी दूर तक आई ना तू, सफर थोड़ा सा मुश्किल भरा था, बट देखना यार तू आज यहाँ तक पहुँची है। एटलीस्ट वहाँ तो नहीं है जहाँ कल तक हुआ करती थी और सफ़र कर रही थी। सफरिंग से भाग मत, वो ज़िंदगी भर रहेगी साथ। ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे तुम सफ़र करते हुए खुशियों ढूंढती हो, परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ती हो और फिर भी हौसले बुलंद रख ज़िंदगी जीते चले जाते हो। अगर कोई धक्का देकर गिरा दे तो उठ जाना, रोकने की कोशिश करे तो बिल्कुल मत रुकना, तो टेंशन ना ले मेरी जान। अगर कोई साथ ना भी दे तब भी इन हौसलों को टूटने मत देना और आगे बढ़ते जाना। डियर मी, कुछ कहना है तुमसे, कहना पड़ेगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम इतनी दूर आओगी ये मैंने सोचा नहीं था। कैसे आज तुम उन मुश्किल हालातों को, उन चैलेंजेस को मात देकर आगे निकल गई हो। पहले जैसे तुम हुआ करती थी तुम उससे आज बिल्कुल भी अलग हो। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम अपने मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब भी खुद को खुश रखा है तुमने, जब कोई ये पूछने वाला नहीं था आसपास कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खुश हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि उस वक्त तुम कितनी टूटी हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस वक्त तुम कितनी टूटी हो, बिखरी हो, कैसे अपने उन आंसुओं को छुपाकर अगली सुबह तुम फिर मुस्कुराई हो। और इसी हिम्मत को देखकर मुझे गर्व है कि तुम पे कि तुम संभल गई और एंड जस्ट बाय दैट तुमने ये साबित किया कि तुम कभी कमज़ोर थी ही नहीं, जैसे तुमने हमेशा से खुद को समझा था या इस दुनिया ने तुम्हें बताया था। खुद को दूसरों के नज़रियों से देखकर तुम खुद ही को जज किया करती थी और कहती थी दैट यू आर नॉट गुड इनफ। और इसके चलते कितने बार लोगों ने तुम्हें गिराना चाहा, तुम्हें नीचा दिखाया, मगर फिर भी खड़ी हुई तुम, क्योंकि तुम्हें ये पता था कि लोगों की बातों और उनका नज़रिया तुम्हारी वर्थ को डिफाइन नहीं करता है और नहीं कुछ मायने रखता है, क्योंकि उनसे बेहतर तुम खुद को जानती थी। वैसे हाँ, गलतियाँ तो तुमसे भी बहुत हुई है, मगर उन गलतियों को यूँ बैठे बैठे पछतावा करने से बेहतर है तुमने उनसे कुछ सबक सीखकर उन्हें सुधारा है, और वो अच्छी बात है। और इन्हीं गलतियों को तजुर्बों से अब तुम भी हर रंग में रहना सीख गई हो कि यहाँ खुद से रिश्ता ही सबसे गहरा और सच्चा होता है, जो एहसास दूसरों ने करवाया है तुमसे। और वो भी क्यों ना खुद को ऑटो पायलट मोड पे जो रखती थी, बस बिना सोचे दुनिया के हिसाब से चलती जा रही थी। पर हाँ, मैं जानती हूँ तुम अब बदल गई,
उस कंप्लेनिंग मूड से हटकर तुम अब लाइफ के हर ढंग को जी रही हो, हर अच्छे और बुरे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर रही हो, उससे खुश हो रही हो। और तुम्हारे इस नए वर्जन से मैं बहुत खुश हूँ और उससे इंस्पायर भी, क्योंकि शायद तुम हमेशा से ऐसे ही रहना चाहती हो, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आज़ाद, खुश और थोड़ी सी बेपरवाह। खैर, तुम ऐसे ही खुश रहते रहना, बस इट energizes me. So dearly, keep growing, and I promise you I will be always by your side, and I never let you down, because you know what, I love myself. Just take that. Thank you. Who is the writer? मैम, मैं ऋतु जोशी की पोएम बोल रही हूँ। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ऋतु जोशी। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है तब जब दिखाती हूँ, फर्क पड़ता है तब जब दिखाती हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं, बहुत दुखता है जब दिखाती हूँ, कोई दर्द नहीं, दिखाती हूँ कोई दर्द नहीं। बहुत कुछ कहना हो तो ओढ़ लेती हूँ खामोशी, पास आना चाहती हूँ तो खुद को खींच लेती हूँ तुझसे दूर, तो खुद को खींच लेती हूँ तुझसे दूर। कोई रोड़े अटकटाती हूँ खुद को तेरी समझाने की कोशिशों में, खुद को तेरी समझाने की कोशिशों में, और फिर खुद ही लगा भी देती हूँ इल्जाम कि तू तो मुझे समझता ही नहीं। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। मैं चाहती हूँ क्या, मुझे जताना नहीं आता। आंसुओं को पीना पुरानी आदत है, आंसुओं को पीना पुरानी आदत है, मुझे आंसू बहाना नहीं आता। लोग कहते हैं मेरा दिल है पत्थर का, लोग कहते हैं मेरा दिल है पत्थर का, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब क्या कहूँ मैं, क्या आता है क्या नहीं आता। अब क्या कहूँ मैं, क्या आता है क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है, तभी तो चांद में दाग है। और मुमकिन है चांद ने की होगी बेवफाई, और मुमकिन है चांद ने की होगी बेवफाई, तभी तो सूरज में इतनी आग है। પોએમનું નામ છે હિંમત અને the thing is કે આ પોએમ બહુ ક્લોઝ છે કોઝ મેં ને મારા દાદાએ થોડી કો કમ્પોઝ કરેલી છે સાથે ધ પોએમ સ્ટાર્ટ્સ जीवन है चलती डगर यहाँ, ना रुकना है ना झुकना है, बस तुझको ही संभलना है। यहाँ रिश्ते हैं, यहाँ नाते हैं, ये सब तुझे सिखाते हैं। यहाँ प्यार भी है और नफरत भी, पर तुझको सबसे चाहत रखनी है। मत सोच ज़्यादा, क्योंकि तुझको खबर नहीं क्या तुझे मिला है उसकी कदर नहीं। तू आगे बढ़, सिर्फ आगे बढ़, हिम्मत की आगे कोई जगह नहीं। जीवन है चलती डगर यहाँ, ना रुकना है ना झुकना है, बस तुझको ही संभलना है। सार्थक पटेल की मैं थी। अभी 26 जनवरी हुई तो उसके लिए एक शेर फरमाता हूँ, गौर कीजिएगा कि कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा है हिंदुस्तान की शान का। वाह 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 वाह। और एक और शेर है कि नाम करेंगे और एक शेर है कि कभी किसी का दिल रुक जाए और उसके लिए मैंने लिखा है कि मंजिल ने मुझे छोड़ा, रास्ते ने मुझे संभाला, कि मंजिल ने मुझे छोड़ा, रास्ते ने मुझे संभाला, जिंदगी की जरूरत है क्या, मुझे तो दुआओं ने संभाला। ये आदि ने लगे हमें पीछे एक आदि फरमाइए। और प्यार का महीना चल रहा है तो जाकिर खान का एक शेर सुनाता हूँ कि सुनाओ। बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगे क्या, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगे क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगे क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगे क्या। तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर लगाने दोगे क्या। आज बात जो मारा काठियावाड़ी में जो प्रपोज करो तेनी माटे एक शेर लख्यो छे कि सूर्यना सोनेरी किरणोनी जेम प्रकाश पातळती, चंद्रनी चांदीनी जेम शीतलता आपती, रजनीगंधाना छोडनी जेम परिमल पातळती एवा तमारा नयन अमारी आंखमां बंध થઈ ગયા છે। और निकालनी तैयारी करो
तुम्हारा बर्थडे कितना हंसी वो ख्वाब था जब तू मेरे साथ था, कितने खूबसूरत थे वो लम्हे जब हाथों में तेरा हाथ था। मगर अफसोस वो ख्वाब ही तो था जिसे टूटना ही था, ये वो वक्त था जिसे गुजरना ही था। बिखर सी गई मैं जब वो ख्वाब था टूटा, टूट सी गई मैं जब हाथों से तेरा हाथ था छूटा। रोना भी नसीब ना हुआ मुझे, क्या गिला करूँ तुझसे, तू किसी और की किस्मत में था, तुझे तो उसका होना ही था। वाह बोलो जज आए लोग मरते हैं हुस्न पर, कोई हमारी शायरी पर मर जाए तो क्या बात होगी। लोग मरते हैं हुस्न पर, कोई हमारी शायरी पर मर जाए तो क्या ही बात होगी। मगर फर्ज करो अगर हमें शायर ही मिल जाए तो क्या मुलाकात होगी। आम लफ्ज़ों से नहीं शायरी से होंगे जज्बात बयां, आम लफ्ज़ों से नहीं शायरी से होंगे जज्बात बयां। और महफिल सजेगी जिस दिन हमारी मोहब्बत की, सोचो मेरी जान क्या हंसी वो रात होगी। ओन रिटर्न है। बहुत अंधेरा है यहाँ, तुम ओस की बूंद बन जाना। सूर्य है बहुत दूर पर तुम उसे चमकाना। किरणों को पहुँचने में भी तो वक्त लगता है, न जाने हम क्यों थकते हैं जब सब्र का फल मिलता है। सही समय जब आएगा अमृत भी पक जाएगा, समय के पहले तो फल भी खट्टा लगता है, तो तू क्या ही कर पाएगा। समय की ताकत तू क्या जाने मनुष्य, तू ना भी तो टिक पाएगा। समय बुरा हो या अच्छा बस यूं ही निकल जाएगा। मिट्टी का तू प्राणी है मिट्टी में मिल जाएगा, समय का तू आदर कर तू प्रखर निखर आएगा। जब समय का पहिया चलता है कर्मों का फल मिलता है, कर्म अच्छे हो या बुरे हिसाब सबका निकलता है। मेहनत भी रंग लाएगी हर ख्वाहिश सच हो जाएगी, समय का तू भरोसा कर हर विपदा टल जाएगी। समय का तू भरोसा कर हर विपदा टल जाएगी। Myself Vanshika Gokhale, and the title of my poem is Beautiful in Your Deformity. This poem is dedicated to all the acid victims that are currently... You have written? Yes, I have written the poem. So the poem goes like this. Her eyes were like diamonds which are always sparkle. Her nose was sharp and beautiful. Her facial features were mesmerizing. But it was all till the day she was attacked by acid attackers. After that day, she was crumbled down. She lost faith in herself and used to think that her life is hopeless. But how can a mother let her child fall down like this? She gave a new ray of hope to her daughter. She made her realize that she has the capacity of changing her life from bad to good. All because she has a good heart, a heart that cares for others. Her nature that attracts more people, having wonderful personality and nature matters, not the mask which we wear on our face and go in public. She made her daughter believe that she is the same person from the inside. What happened if your body part is deformed? Your mind and heart will never change, even if your covering is changed. So stop being negative and focus on what you have which no one has. Be strong and confident about yourself because you are still beautiful in your deformity. Thank you. Good. Good afternoon, everyone. I am Gauri Gupta, first year MPT student. I am going to recite a poem, and that poem is like my personally favorite poem. No, it's not self-made. हरिवंश राय बच्चन जी की पोएम एंड लाइक मेरे को बहुत हमेशा मोटिवेट करती है, हमेशा ही जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम फीलिंग डाउन, इट्स लाइक दैट। कोशिश करने वाले या द टाइटल ऑफ माय पोएम इज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी ये मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उस
की खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I'm Samriddhi Jain, first year MPT student. Under class teacher. તારો ભાઈ ભણો કોમલ पटेल की बोली कॉन्ट्रैक्ट पे। So मेरी कविता का शीर्षक है खुदगर्ज and it goes like this. खुद लिखी नहीं आपने नहीं लिखी ना? नहीं ना हाँ सही समवन है। खुदगर्ज। बिना किसी को अर्जी दिए, बिना किसी को अर्जी दिए, थोड़ी सी खुदगर्जी लिए, सिर्फ अपनी मनमर्जी कर। बिना किसी एतराज के, बिना किसी एतराज के अपने अलग अंदाज में कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर। बिना कोई सवाल किए, ना एक भी मलाल किए, सिर्फ अपना ख्याल कर। बिना ज़्यादा विचार किए, ज़रा सा एतबार लिए, तुझसे प्यार कर। बिना किसी बोझ के, महज अपनी ही मौज में, निकल तू अपनी ही खोज में। बिना किसी का इंतज़ार किए, कष्ट रूपी औजार लिए, खुद के साथ वक्त गुजार ले। बिना किसी अभिमान के, सिर्फ स्वाभिमान से खुद का सम्मान रख। लंबा है ये सफ़र, लंबा है ये सफ़र, कल क्या होगा ये किसको खबर। पर तुम रखना ये सबर, हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं। ना स्वार्थता, ना उदारता, ना नम्रता, ना चतुरता, ना मोहब्बत, ना नफरत, ना राहत, ना मेहनत, ना जिम्मेदारी और ना ईमानदारी। विधि का भी यही विधान, ज़रा सा रहना तुम सावधान। इसका बस एक ही समाधान, बिना किसी को अर्जी दिए, थोड़ी सी खुदगर्जी लिए, सिर्फ अपनी मनमर्जी।